Very good morning to one and all. Today in science we will see chapter number 6, that is air, water and weather. But before we start, here I would like to tell you a thought. Reading is dreaming with eyes wide open. Reading is dreaming with eyes wide open. What we are reading, that we are dreaming with our open eyes. Okay. So it is always advised to have reading practice. So now in chapter science, chapter number 6, that is air, water and weather. So the first term what we are going to see in this chapter is about weather. What is weather? So definition of weather is given here. Weather is the condition of the air सराउंडिंग अस एट एनी गिवन टाइम. कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कंडीशन है, एयर की कंडीशन है हमारे सराउंडिंग में एट एनी गिवन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड वेदर. द वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली. वेदर बहुत ही जल्दी इट कैन चेंज वेरी क्विकली. इट कैन चेंज बाय आवर टू आवर और बाय डे टू डे, or in the whole year also weather keeps on changing. We are seeing now and then early in the morning there was fog, at afternoon we are saying it is very sunny. So weather keeps on changing from an hour to hour. It may be bright and sunny in the morning but may suddenly turns dark and cloudy. सुबह अगर बहुत sunny है, bright है, but suddenly the weather changes. We might have also seen in the monsoon season, suddenly the weather changes and it becomes dark and cloudy. Weather changes from day to day and sometimes even from hour to hour. एक दिन से दूसरे दिन में भी weather change होता है, घंटे पे घंटे भी weather change होता है. You can feel and see when the weather is windy, rainy, sunny or cloudy. We are feeling this weather and we can also see the condition of air surrounding us. Either it is windy or cloudy or sunny or rainy. Okay. The weather also changes during the year. पूरे साल में भी weather keeps on changing. You have already learnt that the earth's rotation causes day and night, and the earth's revolution causes season, change in season. We have seen in chapter number 5 कि rotation, that is the spinning moment of the earth, causes day and night, and the revolution of the earth causes changes in season. It is hot during the summer and it is cold during the winter. It rains in the rainy season. So the weather keeps on changing the whole year. Okay. However, even during a particular season, the weather changes from day to day and from hour to hour. कोई particular season में भी, either if it is rainy season, तो rainy season में भी घंटे पे घंटे और day to day weather keeps on changing. Okay. So this is known as the weather. Weather means nothing but the condition of air. Surrounding us, हमारे आजू बाजू में जितने एयर है उसकी कंडीशन कैसी है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज नोन एज वेदर. ओके. नाउ हाउ डज द सन अफेक्ट वेदर? सन जो है वो वेदर को कैसे अफेक्ट करता है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. Changes in weather takes place because of the sun, that we all know कि because of the sun only changes in season occurs. Okay. It is the heat of the sun that causes the wind to blow and clouds to form. sun की heat की वजह से ही wind blow होती है, हवा क्यों चलती है? because of the heat of the sun, as well as clouds are forming, that is also because of the sun. That's why we are saying now and then कि without the sun life would not be possible on the earth. हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि sun के बिना
अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द रीज़न कि बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन विंड इज ब्लोइंग एंड क्लाउड्स आर फॉर्म. ओके, हवा चलती है. वाई? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. ओके, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. When the sun is directly overhead, the sun's rays fall directly on the earth and it gets very hot. We all know that sun जब राइज होता है तो धीरे धीरे राइज होता है, तब क्या होता है, थोड़ी स्लैंटिंग सनलाइट आती है. बट एट द नून, आफ्टरनून होते होते इट कम्स डायरेक्टली अप टू आवर हेड, हमारे हेड के ऊपर डायरेक्टली आ जाता है. तो जो स्ट्रेट रेज होती है वो लैंड को, अर्थ को ज़्यादा वार्म अप करती है इंस्टेड ऑफ स्लैंटिंग सनलाइट. तो इसलिए कहा जाता है कि in the afternoon it is warmer than in the morning and evening. मॉर्निंग और इवनिंग से जो आफ्टरनून का टाइम है वो बहुत हीट वाला होता है, बहुत वार्म होता है. वाई? बिकॉज एट द आफ्टरनून सन इज डायरेक्टली ओवर द हेड, तो उसकी सनलाइट डायरेक्टली फॉल होती है अर्थ पे. और जब धीरे धीरे वो सन सेट होता है या तो सन राइज होता है, तब उसकी सनलाइट कैसी आती है, स्लैंटिंग आती है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है. ठीक है. सो in the afternoon it is warmer than in the morning and evening. Wow, now what makes the wind blow? हवा क्यों चलती है, किसकी वजह से चलती है? Just now we have seen कि because of the heat of the sun. Then how, what makes the wind to blow? किस लिए हवा कैसे चलती है? Now we have seen that when the sun shines brightly, जब बहुत गर्मी होती है तब क्या होता है, जो लैंड होती है वो पूरा हीट अप हो जाता है. देन द एयर प्रेजेंट अबाउट द लैंड, लैंड के ऊपर के, लैंड सरफेस के ऊपर जितनी एयर प्रेजेंट है वो भी सन की हीट की वजह से वार्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है वो एयर. देन द एयर विच इज़ वार्मर, जो गर्म हवा होती है वो वज़न में हल्की हो जाती है, वो लाइट वेट होती है. तो वी ऑल नो दैट लाइट वेट एयर है वो धीरे धीरे राइज अप होने लगती है. और जो ऊपर की ठंडी हवा है दैट कम्स इन द लैंड साइड. तो जो गर्म हवा लैंड के ऊपर जो हवा है वो सन की हीट की वजह से हीट अप हो जाती है. तो एयर विच इज़ वार्मर एयर है वो वजन में कैसे होती है, लाइट होती है. देन लाइट एयर राइजेस अप एंड द एयर विच इज प्रेजेंट अबव द लैंड वो धीरे धीरे अपनी जगह ले लेती है. इन दिस वे एयर सर्कुलेशन होता रहता है एंड विंड ब्लोज. सो नाउ यू गेट अप कि हाउ, व्हाट मेक्स द विंड टू ब्लो? इट इज द हीट ऑफ द सन. सन की हीट की वजह से विंड ब्लो होती है. कैसे? कि जब सनलाइट होती है तो लैंड पूरा हीट अप हो जाता है. देन द एयर विच इज़ प्रेजेंट अबव द लैंड, लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो भी कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है. और वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, वार्म एयर है वो हल्की होती है वजन में, तो धीरे धीरे राइज अप होने लगते हैं. इन द एयर विच इज़ प्रेजेंट अबाउट द हाइट, वो हाइट में जो एयर प्रेजेंट है वो थोड़ी ठंडी होती है, तो ठंडी हवा नीचे आ जाती है एंड द वार्म एयर राइजेस अप. इन दिस वे विंड ब्लोज. ओके, दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो. नाउ व्हाट कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीज दैट यू माइट हैव लर्नड इन द थर्ड स्टैंडर्ड? ब्रीज यानी कि हवा, जो प्लीजेंट हवा चलती है, दैट इज नॉन एज ब्रीज. नाउ व्हाट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एंड व्हाट कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज? ओके, इन कोस्टल एरियाज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्टल एरियाज? मीन द एरिया where the sea start and land is also there, that line is known as coastal area. The wind blows from the sea to the land during the day, this is called the sea breeze. यहाँ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, sea breeze occurs during the day and land breeze occurs during the night. sea breeze में हवा कहाँ से कहाँ चलती है, तो कि sea to land, and from in the land breeze
breeze blows from land to sea. These two things you have to remember in this topic. First one is sea breeze. In coastal areas, the wind blows from the sea to the land कब? During the day. This is called the sea breeze. And the same vice versa it happens in the land breeze. During the night, the wind blows from the land to the sea. नाइट के टाइम में क्या होता है? द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. सी एंड लैंड ब्रीज अकर बिकॉज ऑफ द सन. जैसे वी हैव लर्न अभी कि जो विंड ब्लो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द सन. इन द सेम वे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज अकर्स बिकॉज ऑफ द सन. ओके, व्हाट हैपन्स? व्हाट कॉजेस द सी ब्रीज? सी ब्रीज कैसे कॉज होती है? तो सी हियर इट इज गिवन ड्यूरिंग द डे. डे टाइम पे वी ऑल नो दैट इट इज ब्राइटर एंड सनी. द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर देन द वाटर इन द सी. दिन को क्या होता है? जो लैंड जमीन है वो जल्दी से गर्म हो जाती है सन की हीट की वजह से, और जो पानी है उसको गर्म होने में देर लगती है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. तो जो एयर अबव द लैंड, लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो जल्दी से गर्म हो जाएगी बिकॉज द लैंड हीटेड्स अप फास्टर इन द हीट ऑफ द सन. ओके, तो कूल एयर अबव द सी ब्लोज टू टेक इट्स प्लेस. जो लैंड के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी. देन वार्म एयर, वी ऑल नो दैट वार्म एयर इज लाइट इन वेट. तो गर्म हवा वो धीरे धीरे सी की तरफ जाएगी, और फ्रॉम द सी के ऊपर जो थोड़ी ठंडी हवा है तो वो थोड़ी वेट में हल्की होती है तो ऊपर ब्लो नहीं कर सकती. इट कम्स टुवर्ड्स द लैंड. दस द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे. इसलिए सी ब्रीज कब अकर होता है? ड्यूरिंग द डे. Clear? In the same way, it is vice versa in the land breeze. What happens in the land breeze? At night, the land cools down faster than the water in the sea. Sea में जो पानी है उससे फास्ट लैंड क्या होता है? जल्दी से ठंडा हो जाता है. But so the water is warmer than the land. जो सी में जो पानी है वो थोड़ा गर्म है देन विथ रिस्पेक्ट टू लैंड. तो जो सी के ऊपर जो हवा है वो गर्म होती है तो वो कहाँ ब्लो करेगी? लैंड के साइड. और लैंड के ऊपर जो हवा है वो जल्दी से ठंडी हो गई होगी देन इट विल ब्लो टुवर्ड्स द सी. द वार्म एयर अबाउट द वाटर राइजेस अप एंड द कूल एयर ओवर द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस. तो जमीन के ऊपर जो हवा होगी वो सी की तरफ ब्लो होगी. ओके, दस द लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट. इसकी वजह से लैंड ब्रीज कब ब्लो होती है? ड्यूरिंग द नाइट. क्योंकि सी ब्रीज अकर्स इन द डे. व्हाई? बिकॉज सन की हीट की वजह से लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है. एंड ड्यूरिंग द नाइट पानी को ठंडा होने में देर लगता है. जो पूरे दिन का पानी गर्म हुआ है तो पानी को ठंडा होने में देर लगता है, बट लैंड जितनी ज़्यादा गर्म जल्दी हो जाता है वैसे उतनी ही ज़्यादा लैंड जल्दी से ठंडा भी हो जाता है. ओके, सो सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग द नाइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. See here one activity is given. You can also do at your home. What you have to do? In one vessel, या तो in a glass bowl. Take a glass bowl, then it will be more viewable to you. एक glass bowl में what you have to do? ये आपको कोई मार्क करके वहाँ तक पानी भर के वो बाउल को सन में रख देना है. फिर थोड़े टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद देखना है कि उसमें से पानी थोड़ा कम हुआ है कि नहीं. वॉट यू नीड टू डू इज़, आपको मार्क करना है जहाँ तक आपने पानी भरा है, और कुछ घंटों के बाद यानी कि 6-7 घंटों के बाद वो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो मार्क किया हुआ जो लेवल था उससे पानी कम हुआ है कि नहीं. वो कम ही हो जाएगा, थोड़ा सा तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे. तो वो पानी गया कहाँ? ओके, दैट इज द पॉइंट here, that is evaporation. The water changed to water vapor in the heat of the sun. This process is called
इवोपरेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। ना इवोपरेशन इज व्हाट, कि अब जब पानी होता है वो हीटअप हो जाता है, तब वो धीरे धीरे वाटर वेपर यानी कि पानी वो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी गर्म होता है देन इट चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म, थोड़ा धुआं जैसा हो जाता है, दैट इज वाटर वेपर। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। दैट वाटर चेंज्ड टू वाटर वेपर इन द हीट ऑफ द सन की गर्मी की वजह से जो अर्थ के सरफेस में जितना पानी है वो गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। ना वन क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि जब दिन होता है, दिन में धूप ज़्यादा होती है, तभी लैंड गर्म होता है। तो ऐसा होता है क्या कि जब दिन में ही इवोपरेशन होता है? नो, जितना अर्थ के सरफेस में पानी है उसका इवोपरेशन धीरे धीरे होता ही रहता है। इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। पानी का इवोपरेशन हमेशा होता ही रहता है, ऑल द टाइम। बट वो चीज़ होती है कि इट इज़ फास्टर इफ द वाटर इज हीटेड। जब पानी गर्म होता है तब इवोपरेशन फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बाय द सन, दिन में सन होता है तो सन ज़्यादा पानी को वो हीट कर देता है, तो दिन में इट्स ऑब्वियस कि दिन को है वो पानी गर्म होता है तो इवोपरेशन फास्ट होगा। ओके, हियर वन एग्जांपल इज गिवन दैट यू कैन ऑल्सो डू एट योर होम। टेक सम वाटर इन अ पैन। एक पैन में आपको क्या लेना है? पानी। आस्क एन एडल्ट टू हीट इट जेंटली फॉर अबाउट 5 minutes ओवर अ फायर। हियर यू कैन पुट दैट पैन ऑन योर स्टव। आपके किचन में जो स्टव होता है उसके ऊपर आपने जो पानी लिया है बर्तन में, वेसल में, उसको 5 मिनट तक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हीट अप ऑन योर स्टव। क्या ऑब्जर्व करोगे? डिड सम ऑफ द वाटर इन द पैन इवोपरेट? आप पैन में जब पानी रखते हो 5 मिनट के बाद वो पूरा बॉयल होने लगता है, तो उसका जो आप देखोगे वाइट कलर का मार्क हो जाता है। तो वो पानी थोड़ा सा कम हुआ है क्या? तो वो कहाँ गया? तो पानी इवोपरेट हुआ है। नाउ आस्क द एडल्ट टू होल्ड अ स्टील प्लेट ओवर द पैन। यू माइट हैव सीन दिस, ऑब्जर्व दिस। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, गर्म पानी करने जब रखते हो तब आप उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हो। जब आप प्लेट खोलते हो तो उसमें से पूरा फॉगी हवा निकलती है, धुआं जैसा निकलता है, दैट इज वाटर वेपर। बट आपने जब प्लेट खोली, उसको उल्टा करके देखा तो प्लेट भी पूरा वेट हो गया, गीला हो गया है, और उसमें आप टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्लेट के अंदर की साइड पे देख सकते हो। दैट इज नॉन एज कंडेंसेशन। तो प्लेट आप जब खोलते हो गर्म पानी हो जाने के बाद, जब आप प्लेट को उठाते हो तब उल्टा करके देखोगे तो उसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें आप देख पाओगे। वाई इट हैपन्स, वो कैसे हुई, दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड दैट इज नॉन एज कंडेंसेशन। ओके, पानी को जब आपने गर्म किया तो वो गर्म हीटेड पानी है वो गैसियस फॉर्म में यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट आपने जब वो प्लेट उसके ऊपर ढकी तब प्लेट कैसी होती है? ठंडी होती है। तो गर्म वाटर वेपर जब ठंडी सरफेस को टच करता है तो फिर से अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसियस फॉर्म है वाटर का, दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर जब ठंडी प्लेट को टच करता है देन इट अगेन चेंजेस इनटू वाटर, इसलिए वो पानी की बूंदों में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई यू कैन से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर द प्लेट। ओके, जब प्लेट आप खोलते हो तो जो हवा वाटर वेपर होती है वो ठंडी प्लेट को टच करने की वजह से वो फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नॉन एज कंडेंसेशन। द वाटर वेपर कूल्स डाउन when it comes in contact with the cool plate and changes back to water. वाटर वेपर जो
धुआं जैसा था वो जब ठंडी प्लेट को टच करता है तो फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कंडेंसेशन। इन द सेम वे वाटर वेपर ऑल्सो कंडेंसेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड एयर। ये हमने एग्जाम्पल देखा जो आप घर पे कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट द वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? सी, ओशियन में जो पानी है वो भी इवोपरेट तो होता ही है, दैट वी ऑल हैव सीन कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इवोपरेशन पानी का होता है। तो फिर से पानी की बूंदों में कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि जो वाटर वेपर होता है वो धीरे धीरे राइज अप होता है और हाइट में जाके व्हाट हैपन्स, वहाँ तो ठंडी हवा ही होती है, वो ठंडी हवा के साथ गर्म वाटर वेपर जब कांटेक्ट में आएगा तो फिर से वो वाटर ड्रॉपलेट्स या तो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड दैट वी विल सी in the water cycle. This all the topics, all the terms are interrelated with each other. Okay, what we have learned in evaporation, condensation, that is the basic of the water cycle. Okay, now we will see about the water cycle. Now water cycle. As the sun shines down on the earth, water in lakes, rivers and oceans evaporates and changes into water vapor, that we have seen. जब धूप होती है इवोपरेशन ज़्यादा होता है और जो लेक और ओशन का जो पानी है इट इवोपरेट्स, ओके, एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वो वाटर के गैसियस फॉर्म में आ जाता है, दैट इज वाटर वेपर। द एयर along with the water vapor becomes warmer and rises up. वाटर वेपर के साथ जो हवा होती है वाटर सरफेस के ऊपर की वो भी गर्म हो जाती है एंड इट राइजेस अप। एज इट राइजेस हायर इन द स्काई इट कूल्स डाउन। जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगता है, वी ऑल नो कि हाइट जितनी बढ़ती है तो उतनी ठंड ज़्यादा होती है, जितना ऊपर जाओगे तो फिर से कूल डाउन हो जाती है। वाई? बिकॉज वहाँ थोड़ी ठंड होती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड tiny dust particles in the air to form tiny droplets of water. फिर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर जब ऊपर गया तो वहाँ एयर के ऊपर जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ऊपर ठंड होती है, तो वो ठंडी के कारण हमने देखा कंडेंसेशन में कि जो वाटर वेपर होता है वो कूल एरिया को टच करता है, कांटेक्ट में आता है तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इन द सेम वे जो ऊपर की हवा ठंडी है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके साथ जो गर्म वाटर वेपर कांटेक्ट में आएगा तो फिर से पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? बिकॉज दिस इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। जो जब ये मिलियंस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? बड़ा सा क्लाउड्स। ओके, क्लाउड बन गए। देन अब किसकी बारी? तो कि उसको बरसने की, दैट इज रेन। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड बिकम बिगर एंड हैवियर। जो छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो बादल होते हैं थोड़े हैवी और बड़े बड़े बनने लगते हैं। ओके, when they become very heavy they fall to the ground as rain। जब वो पूरी क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है? they fall to the ground as rain। रेन के फॉर्म में वो पानी फिर से जमीन के ऊपर आ जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड गोज बैक इनटू लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। जो बारिश होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी या तो बह के लेक, रिवर और ओशियन में मिल जाता है। दिस वाटर इवोपरेट्स अगेन एंड फॉल्स एज रेन। सी ओशियन में चला गया, फिर से उसका इवोपरेशन होगा, फिर से बारिश होगी। सो दिस प्रोसेस हैपन्स अगेन एंड अगेन। वो बार बार ये प्रोसेस होती रहती है। इवोपरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, अगेन इट फॉल्स डाउन एज रेन। तो दिस रिपीटेड चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, जमीन पे वो पानी के फॉर्म में था, वो हीट अप होके वाटर वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में आ गया, फिर से ऊपर कंडेंसेशन हुआ और फिर से वो पानी की
फॉर्म में, एज अ फॉर्म ऑफ रेन इट कम्स डाउन टू द लैंड एंड देन बैक टू वाटर. वाटर में से वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द वाटर cycle. Water cycle is the repeated change of water to water vapor and then back to water is called the water cycle. You will see the video of this water cycle at the end of this chapter. Okay, so this was all about water cycle. Here you can also see in the picture how water cycle occurs. See the arrows which are given, उसकी एरो की साइड हमेशा बताई रहती है. पहले तो पानी जो ओशन का है वो इवोपरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, रेन के फॉर्म में आते हैं, बारिश गिरती है, फिर से वो बहता हुआ पानी रिवर, ओशन और लेक्स में मिक्सअप हो जाता है, फिर से इवोपरेशन होता है. तो ये पूरी साइकिल रिपीटेड अगेन एंड अगेन होती ही रहती है. दिस इज नॉन एज द वाटर साइकिल. See here two questions are given. During which part of the day will water evaporate faster? In the morning or at noon? सुबह इवोपरेशन फास्टर होता है कि नून के टाइम में? देन इट इज ऑब्वियस, हमारा आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द नून. आफ्टरनून में सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है और वो ज़्यादा लैंड को हीटअप करता है, तो इवोपरेशन नून के टाइम में फास्टर होगा. सेकेंड वन इज, on what kind of day will clothes dry faster? On a sunny day or a cloudy day? सनी डे को जो आपके कपड़े होते हैं वो जल्दी फास्ट सूख जाते हैं, या तो क्लाउडी डे को? देन ऑल्सो अवर आंसर इज ड्यूरिंग अ सनी डे. जो जितनी गर्मी वाला डे होगा उस टाइम पे कपड़े, हमारे जो कपड़े आपने सुखाए हैं वो फास्टली वो ड्राई अप हो जाता है. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. नाउ व्हाट इज हेल? समटाइम्स ऑन देयर वे डाउन raindrops pass through very cold air and freeze to form small balls of ice. These fall to the ground as hailstone. जो बारिश की बूंदे, रेनड्रॉप्स जब ज़मीन पे आती है ऑन द वे डाउन, रास्ते में उसको बहुत ही ठंडी हवा होती है तो वो फ्रीज होने लगते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं और वो बर्फ़ के टुकड़ों के फॉर्म में, हेल स्टोन के फॉर्म में वो ज़मीन पे गिरते हैं. दैट इज नॉन एज हेल. सो यू कैन सी इन द पिक्चर, हेल स्टोन का पिक्चर भी दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्नो. बर्फ़ कैसे गिरती है? If the clouds themselves are very cold, the water vapor condenses and freezes to form ice instead of water. जो वाटर वेपर कंडेंस होके पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो क्लाउड है वो ही पूरा इतना ठंडा है कि वो डायरेक्टली फ्रीज हो जाता है पानी इन द फॉर्म ऑफ आइस. द आइस सो फॉर्म्ड इज इन द फॉर्म of soft beautiful snowflakes. Snowflakes, they have different shapes. Okay, जो बर्फ बन गया वो एक सॉफ्ट और ब्यूटीफुल स्नोफ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अलग अलग स्नोफ्लैक्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं. यू माइट हैव ऑल्सो सीन इन द टेलीविजन. हियर आप पिक्चर में भी दिखा है, देखो एक पत्ते के ऊपर बर्फ जम गया है, तो अलग अलग स्नोफ्लैक्स के शेप बहुत अलग भी होते हैं. तो स्नो कैसे बन गया कि जो क्लाउड्स है वो ही पूरा इतना ठंडा है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके पानी में कन्वर्ट होने की वजह है वो पूरा जम जाता है, डायरेक्टली इट फॉर्म्स द आइस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्यू एंड फ्रोस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू और फ्रोस्ट? गो आउट इन द गार्डन ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग. जब आप ठंडी के सीजन में गार्डन में अगर गए हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, गार्डन नहीं है तो भी आपके घर में जो प्लांट्स है उसमें भी आप ठंडी के सीजन में ये ऑब्जर्व कर पाओगे. ऑब्जर्व द लीव्स एंड ग्रास. डू यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम? There may also be drops of water on window panes.
ठंडी के सीजन में आपने देखा होगा जो पत्ते के ऊपर आप छोटे छोटे पानी की बूंदें देख सकते हो, या तो फिर आपके घर के सामने कोई गाड़ी पड़ी है, विंडो का जो ग्लास है उसमें भी आप पानी की छोटी छोटी बूंदें देख सकते हो। अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू वेक अप, वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम, तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? ऑन कोल्ड नाइट्स द एयर नियर द ग्राउंड कूल्स डाउन, जो ग्राउंड के ऊपर जो हवा होती है वो धीरे धीरे कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ग्रास एंड विंडो पेन्स। तो हवा के अंदर जो वाटर वेपर है वो ठंडी की वजह से कूल डाउन होके, कंडेंसेशन होके फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ड्यू, इसको क्या बोलते हैं? ड्यू। ऑन वेरी कोल्ड नाइट्स ड्यू फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। यही पानी की बूंदें अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो जहाँ जहाँ ये पानी की बूंदें जमी है वो फ्रीज होने लगेगी, दैट इज नॉन एज फ्रॉस्ट। ओके, सी यू कैन सी इन द पिक्चर ड्यू ऑन अ फ्लावर, एक फ्लावर के ऊपर पानी की जो बूंदे हैं वो उसको बोलते हैं ड्यू, बट वो बहुत ठंडे के कारण वो पानी की बूंदे जम जाती है, दैट इज नॉन एज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट इज सीन ऑन वेरी कोल्ड मॉर्निंग्स इन विंटर इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में बहुत सुबह की अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू सी, तो वहाँ आपको फ्रॉस्ट नज़र आएगा, दैट इज द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉग। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉग। अगर आप बहुत सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर तो आपको हाईवे पे धुआं जैसा दिखता है कि थोड़ी डिस्टेंस में भी अगर कोई व्हीकल जाता है तो आपको दिखता नहीं है, दैट इज नॉन एज फॉग। ऑन वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स वाटर वेपर sometimes condenses on dust particles near the ground and clouds form just above the ground. वाटर वेपर होता है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो ज़मीन के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके ऊपर ही कंडेंस हो जाता है, तो क्लाउड जैसा एक ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही पूरा क्लाउड जैसा बन जाता है, दैट इज नॉन एज फॉग। वाई इट हैपन्स? बिकॉज ऑफ द कोल्ड। विंटर सीजन में हम ज़्यादा फॉग देख पाओगे, ठंडी की वजह से जो वाटर वेपर है वो राइज अप नहीं हो सकती, बट जो सरफेस के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके ऊपर ही कंडेंसेशन हो जाता है, तो क्लाउड जैसा ग्राउंड के ऊपर के लेवल में ही आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉग। Sometimes the fog is so thick that it is difficult to see beyond a few meters. कुछ मीटर की दूरी में भी हम लोग नहीं देख पाते, उतना थिक फॉग होता है। व्हीकल ड्राइवर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। पायलट्स हैव डिफिकल्टी टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग प्लेन्स। फॉग की वजह से फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड होने में भी हम कभी कभी सुनते हैं कि आज फॉग की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है, क्योंकि पायलट्स को और व्हीकल ड्राइवर्स को उन सबको तकलीफ होती है, कुछ दूरी में भी कुछ मीटर तक भी नहीं देख पाता है। समटाइम्स एयरपोर्ट्स हैव टू बी क्लोज बिकॉज ऑफ फॉग। एयरपोर्ट भी पूरे बंद रखने पड़ते हैं फॉग के कारण, उतना ज़्यादा ठंडी के सीजन में फॉग का प्रॉब्लम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज द अर्थ्स वाटर। अर्थ के ऊपर जो पानी है, अर्थ सरफेस में जितना पानी है, दैट हमको वी ऑल नो दैट अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ के अगर 4 भाग हम लोग कर दें तो 4 भाग में से 3 हिस्सों में अर्थ सरफेस है वो पानी से कवर है। इट इज प्रेजेंट इन द ओशियन, सी, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ सरफेस एज ग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर भी जो पानी प्रेजेंट है दैट वी आर नोइंग एज ग्राउंड वाटर, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जिंदा रहने के लिए वी ऑल नीड वाटर
to live. We have also seen the importance of water. वाटर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है. विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. Most of the water available on the earth cannot be used by us for drinking. जो अर्थ के सरफेस में पानी अवेलेबल है वो पूरा का पूरा पीने लायक पानी नहीं होता है. द वाटर इन द सी एंड ओशियन इज सॉल्टी. हमको मालूम है कि ओशियन का वाटर कैसा है, सोल्टी होता है. दैट वी कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग. इन मोस्ट प्लेसेस द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज नॉट क्लीन इनफ टू ड्रिंक. इट इज सेड टू बी पॉल्यूटेड. कहीं सारी जगहों पर पोल्यूशन के कारण वाटर पोल्यूशन भी हो गया है कि वो साफ नहीं है, खराब हो गया पानी. वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड. वो क्यों खराब हो गया है? बिकॉज वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेस एंड फैक्ट्रीज इज अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर्स एंड लेक्स. रिवर, नदियाँ, ओशन में जो कचरा है सारे वो लोग डालने लगे हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का, घर का कचरा वो डायरेक्ट पानी में फ्लो होता है. फैक्ट्रीज के केमिकल्स होते हैं, कचरे होते हैं, उसकी वजह से पानी अब ज़्यादा बिगड़ने लगा है. इट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड. हाउ वी गेट ड्रिंकिंग वाटर? तो पॉल्यूटेड पानी है ओशन, सी में, तो हमें जो पानी घर पे मिलता है तो पीने लायक कैसे बन जाता है, ठीक है. हाउ वी गेट ड्रिंकिंग वाटर? पॉल्यूटेड वाटर हैज डर्ट एंड जम्स इन इट. जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके अंदर क्या होता है? कचरा होता है, जम्स होता है. डर्ट यानी कि धूल, मिट्टी, जम्स, सब कुछ पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट होता है. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कोज सेवरल डिजीज. वी ऑल नो कि हम जब ये खराब पानी पीते हैं तो कई सारी बीमारियां होती है. डर्ट एंड जम्स हैव टू बी रिमूव्ड टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. Water from a river or lake is pumped into the water works in the city. पीने लायक पानी करने के लिए कि बहुत ज़रूरी होता है कि वो पानी में से हम लोग जम्स है, डर्ट है, कचरा है, वो पूरा निकाल दें. तो हम सिटी में, हमारे घर में जो पानी पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है कि जो रिवर और लेक्स है उसमें से पहले पंप करके सिटी के जो मेन वाटर वर्क होता है वहाँ तक पानी पहुंचाते हैं. वी ऑल नो कि जो सिटीज़ में बड़ी बड़ी वाटर टैंक्स होते हैं, दैट इज़ वाटर वर्क. ओके, सिटी के अंदर वाटर वर्क्स होते हैं, वहाँ तक रिवर और ओशन का पानी पंप करके पहुंचाता है. एंड हियर वहाँ क्या होता है? हियर इट इज़ पास्ड टू थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव डर्ट. फिल्टर करके उसमें से वो पानी रिवर और लेक्स का वाटर वर्क तक पानी पहुंचा. वहाँ क्या होता है? वहाँ फिल्टर प्रोसेस होती है और उसमें से जितनी धूल, मिट्टी है वो सब निकल जाता है. देन व्हाट हैपन्स? स्पेशल सब्सटेंस सच एज क्लोरीन आर एडेड टू किल जम्स. मिट्टी निकाल दी, डर्ट निकाल दिया, बट उसके अंदर जो जम्स है वो तो ऐसे निकलेंगे नहीं. तो वो प्रोसेस करने के लिए, जम्स को निकालने के लिए, मारने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है. क्लोरीन डालने से क्या होता है? पानी के अंदर जो जम्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाता है. द क्लीन वाटर इज देन पम्प्ड टू आवर होम्स. उसके बाद वहाँ प्रोसेस पानी का हो गया, बाद में अलग अलग एरिया में वो पानी देते हैं. क्लीन वाटर इज प्रेशियस. इट शुड नॉट बी वेस्टेड. वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. हमारे घर पे आसानी से पानी मिलता है, बट इट इज़ वेरी प्रीसियस. वो कितने सारे प्रोसेस होके पीने लायक बना के हम तक वो पानी पहुंचता है. तो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर. ओके, हियर इन द पिक्चर फिल्टर प्रोसेस कैसे होती है उसका पिक्चर एक दिया है. देखो, पहले रिवर और लेक्स में से फिल्टर होता है. देन सेटलिंग टैंक्स होते हैं जहाँ मिट्टी सब है वो पूरी नीचे बैठ जाती है. फिर उसके बाद फिल्टर प्रोसेस होता है. फिल्टर होने के बाद उसमें जो जम्स रह गए हैं वो जम्स को मारने के लिए उसमें क्लोरीन सब्सटेंस डाला जाता है. क्लोरीनेशन होता है वाटर का और बाद में सबके एरिया में, सबके घर में पानी पहुंचता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. नाउ वी विल सी द वीडियो. थैंक यू. Wow!
around my house. Do you want to know where I come from? We'll begin with the water cycle. The continuous movement of water rising from the earth to sky and back to the earth is called water cycle. Come on, let me show you. The first step of water cycle is evaporation. It is through sun. Today it is very hot. Hey look, I'm flying. The sun heats up the water and changes it to gas or steam called water vapors. This process is called evaporation. See, more water is coming out of the trees. Water present below the surface of earth is being soaked up by trees. It travels up and is released in the environment mainly through the leaves. This process is called transpiration. Hello friends! At higher altitude, the water changes from gaseous state to liquid droplets or solid grains to form clouds. This is called condensation. It's getting heavier. Please, T-board. Hooray! When water droplets in clouds become so large that the clouds can no longer hold them, they fall on the earth in the form of precipitation. This includes rain, sleet, hail, and snow. That's it. I hope you enjoyed it.